Hello, good evening, friends. Myself, Abhijit Fansalkar. I will be again and again asking you how is the preparations going on. So now the CAT 20 is almost knocking on the door. Before that, a great event of King of Festival is going to be held. So first of all, wish you all a very happy and prosperous and safe Diwali, and you can continue with your hard work as usual. So myself, I have been in this particularly CAT teaching field for more than 10 years. I have conducted more than many thousands of hours of CAT training sessions. I have trained more than many thousands of students for CAT, and many of my students have got 99 plus percentile and have secured admission in B school. So this is a appeal from our Unacademy platform. You have to simply install this Unacademy learning app on your mobile, and then you have to just get connected with us with simple procedure, step by step they have mentioned. So you have to just follow it carefully. सबसे important है CAT. Now in my every lecture I insist on taking the admission for CAT. Why? The reason is, in many competitive exams as a base, the CAT is on the top of the table, means difficulty level wise. But once you prepare for CAT, you will find it is very easy for attempting other 8 to 10 exams like SNAP, CET, NMAT, ZAT, GMAT, JRE, बैंक्स, LIC, रेलवे, ये जो सारी बाकी एग्जाम्स है ना, उसका आपका ऑलमोस्ट मोर देन 90% प्रिपरेशंस वहाँ आपका आराम से हो जाता है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गोइंग फॉर कैट, बिकॉज नाउ डेज ऑलवेज रिमेंबर यू शुड हैव योर बैकअप प्लान रेडी विथ यू. कैट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो नथिंग बेटर देन दैट, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो you can simultaneously focus on these other exams as well. That is very important, और उनमें भी आपको MBA करने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं. So here on our Unacademy platform you have to get the subscription, जो आप देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव है, कितना इकोनॉमिकल है. It is just 17,500 for 1 year and 21,000 for 2 years. लेकिन उसमें इतना ही नहीं, इसमें एक अट्रैक्टिव बात ये भी है कि इफ़ यू गेट माय रेफरल कोड अलॉन्ग विथ योर एडमिशन ASP10, तो यू विल अवेल 10% डिस्काउंट ऑन इट. सो ऑन बेसिक फीस 17,500, वहाँ से 1750 लेस होंगे. सो नेट यू हैव टू पे 15,750, और 21,000 में से 2,100 लेस होंगे, तो नेट इट इज़ 18,900. सो दैट इज़ रियली इकोनॉमिकल एंड रियली अट्रैक्टिव. नाउ CAT 20 इज़ ऑलमोस्ट ऑन द डोर इटसेल्फ. जो अभी लोग अपियर करने जा रहे हो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हमेशा मैं बताना चाहता हूँ. प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा. These are the authentic data for the last 3 years for CAT in DILR. For every correct answer, as you are aware, you get 3 marks. For every wrong answer, 1 mark is deducted. So you have to be very careful for attempting the questions. You attempt only those questions about which you are 100% confident. कहीं भी तुक्का लगाने का या चांस लेने का सोचना भी नहीं. सो हियर यू विल फाइंड स्टूडेंट्स, अब यहाँ DILR में 32 क्वेश्चंस होते हैं. 32 में से डिस्ट्रीब्यूशन है DILR का 16 ईच. अब इस साल वो अलग होने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा, बिकॉज दे हैव रिड्यूस द टाइमिंग ऑफ CAT 20 फ्रॉम 3 hours to 2 hours. For each section it has been reduced from 60 minutes to 40 minutes. So proportionately number of questions will also be get down to 32 से around 20-22 होंगे. But apply the same strategy. So with a score of 24, the percentile is 90. So that you can easily check out. You have to solve only 8 questions with maximum accuracy. Next slot is 35 is the score. Percentile is 95, for which you have to solve only 12 questions. This is the important slot.
46 is the score, percentile is 99, for which one has to solve only 16 questions with maximum accuracy. ये हमेशा मेरा टारगेट रहता है, and those who follow it, they are the winner. This is proven, this is my experience. So you have to attempt with maximum accuracy the 50% of the questions. So इस साल जो भी आपको questions मिलेंगे 2022 23, attempt 50% of it with maximum accuracy, so you will be the winner. Now let us go to some practice exercise, जो हम कुछ थोड़े से selected कुछ questions है. So दिवाली में भी आप थोड़े से उसकी तरफ ध्यान देना, so that will be really useful for you. और ऐसे कुछ questions अगर आप attempt करते हो तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं. Now this is the very interesting problem. Actually ये मैं हमेशा लेक्चर में बताता हूँ बार बार कि there are some problems which may occur in DI. मीन्स आपको ऐसा लगता है कि ये DI के अंदर है, लेकिन वो कई बार वो LR से भी कनेक्टेड रहते हैं. So many questions it is slightly difficult to distinguish between them कि ये DI है या LR है, because some problems are common in both. जैसे कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स या वेन डायग्राम या ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस है वो दोनों में कॉमन में आते हैं. तो इसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान देना. अब क्वेश्चन ये तो है DI का, लेकिन इसमें पूरी तरह से लॉजिक इन्वॉल्व है और ये वेन डायग्राम के भी अंदर आता है. मीन्स it is about games and tournaments simultaneously, it is connected with Venn diagram. So ये प्लीज़ ध्यान में रखना कि इसमें किस प्रकार आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. एनी हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम अंडर द सेक्शन DI एंड LR. वो DI का है या LR का है वो एनालाइज करना छोड़ दो, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट. एंड प्लीज़ रिमेंबर, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स या वेन डायग्राम, दैट इज़ माई फेवरेट टॉपिक. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार निकल सकते हैं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड नाउ डेफिनेटली यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आपके फटाफट सुलझते जाते हैं तो वो सॉल्व करने में भी मज़ा आता है. राइट. सो प्लीज़ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन रेशो. मीन्स वेन डायग्राम में कई बार आपने देखा होगा या हमने भी डिस्कस किया होगा, सम डेटा इज़ गिवन एट एक्चुअल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा होता है, लेकिन कई बार वो डेटा परसेंटेज फॉर्मेट में होता है, कई बार वो डेटा रेशो फॉर्मेट में होता है. तो ये एक आइडियल एग्जांपल है जो आपको रेशो फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है. ओके. सो इट इज़ ऑफ 3 पैरामीटर्स. यू कैन गो थ्रू इट. A survey was conducted among 350 people who play 3 games. Okay. So the games are chess, carom and cards. So accordingly हमें 3 सर्कल्स तैयार करने हैं. So it is chess, कैरम और कार्ड्स. उसका डिनोमिनेशन को भी आप एक ही सीक्वेंस में फॉलो करना. ओके. सो डिनोमिनेशन भी एक सीक्वेंस में फॉलो होना चाहिए. सो बेसिक इक्वेशन आपका बन जाएगा T इज the total of ABC plus DEF plus G plus N which is 350. लेकिन अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है. ये जो ABCDFG की जो भी वैल्यूज़ है वो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, because if you just go through the data you will find the data is given in ratio format.
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. Okay, so while taking it in actuals, there should be some multiplying factor connected with it. ये होना चाहिए. That is the basic concept. अब जो डेटा दिया है वो एक एक हम वहाँ मार्क करेंगे. ठीक है. So thrice the number of people who play all games that is G is equal to the number of people who play cards. कार्ड्स खेलने वाला सेक्शन. ओके, ये है PDG. सो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा. इट इज BDGE is equal to thrice of G. राइट. जो डेटा दिया है उसे पहले सारा उतार देते हैं, बाद में कैलकुलेशंस देखते हैं. नंबर ऑफ पीपल हु प्ले कार्ड्स एंड कैरम. कार्ड्स और कैरम खेलने वाला सेक्शन है E+G. वहाँ ओनली शब्द नहीं है. जहाँ भी ओनली शब्द है प्लीज रीड इट केयरफुली. सो नंबर ऑफ पीपल हु प्ले कार्ड्स एंड कैरम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस ओनली. हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ ओनली शब्द आ गया. दैट इज द ट्रिक. सो कार्ड्स और कैरम खेलने वाले जो है इट इज G+E एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेस ओनली. दैट इज ए. ओनली चेस खेलने वाले वो सेक्शन है ए. प्लीज रिमेंबर जो हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम के केस में कि इन वेन डायग्राम वॉट एवर इज द डेटा गिवन अकॉर्डिंगली प्लीज लोकेट द सेक्शन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. वो सेक्शन या सेक्टर जो भी है वो आपको लोकेट करना है. वहाँ से आपके इक्वेशंस बनेंगे और फिर वो कैलकुलेशंस में कन्वीनियंट होगा. ओके. सो नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस एंड हाँ, अब यहाँ देखिए फिर से ओनली. द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले चेस एंड कार्ड्स ओनली. चेस एंड कार्ड्स ओनली, दैट इज D. मार्क द सेक्शन. एंड द नंबर ऑफ पीपल who play none of 3 games, that is N, are in the ratio 3:5, means D over N is 3/5. Okay, this is the data in the ratios. Then number of people who play cards, okay, who play cards means BDG, and number of people who play cards and carom, that is GE, are in the ratio 7:4. अब इक्वेशन क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल हु प्ले कार्ड्स इज BDG और इसका रेशियो आपको लेना है G+E से, विच इज दे हैव गिवन एज 7:4. करेक्ट. डेटा बहुत ट्रिकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ट्विस्टेड है, ट्रिकी है. सो प्लीज़ बी केयरफुल. किस प्रकार वो डेटा दिया है, उस डेटा से वो कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो आपको मार्क करना है. करेक्ट. सो प्लीज़ बी केयरफुल. नाउ ये हो गया. नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग only carom is C, and that playing only cards is B, are in the ratio 6:1. okay, so यहाँ आपको और एक इक्वेशन मिलेगा, C/B is 6:1. ओके, ये 6:1 मीन्स ये रेशो फॉर्मेट है. ये प्लीज़ ध्यान में रखना. जब हम वर्कआउट शुरू करेंगे तब ये लेते समय आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉमन जैसे कि x उसके साथ कनेक्ट करना है टू गेट इट्स कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल्स. ओके. नाउ 6:1.
number of people playing exact two games, comma, number of people playing carom and cards only, okay, carom and cards only, that is E, and the number of people playing none of the games are in the ratio, okay, means यहाँ क्या ratio मिलेगा देखिए, number of people playing exact two games, that is D, E and F, okay, D, F, इसका रेशो किसके साथ है, तो नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग कैरम एंड कार्ड्स ओनली, दैट इज ई, और इसका रेशो है नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग नन ऑफ द गेम्स, नन ऑफ द गेम्स इज एन, तो ये रेशो है 4:1:2, सॉरी 1:2, इट इज 2. Four is to 1:2. Okay. Got it? How? अब आप इसे इंटरेस्टिंग कह सकते हो या ट्विस्टेड कह सकते हो या जो भी है, इट इज़ अप टू यू, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. ये इतना इंटरेस्टिंग और डेफिनेटली आप उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी जज कर सकते हो. अब यहाँ डिफ़िकल्टी लेवल्स कितनी आती है, जो मैंने आपसे कहा था, वेरी इजी, इजी, नॉर्मल, डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये कौन से कैटेगरी में आता है आप डिसाइड कर लो. ओके, इज इट अंडर वेरी इजी? वेरी इजी को डेफिनेटली यू विल नॉट एट इट. ओके, आप कहेंगे अरे क्या यार कुछ भी बोलते जा रहा है. नो, बट दिस इज बिटवीन नॉर्मल एंड डिफ़िकल्ट. इसके अंदर ये डेफिनेटली आप ले सकते हो, क्योंकि इस टाइप के एक्सरसाइज हमने एकेडमिक करियर में कभी सॉल्व नहीं किए. दैट इज़ द मेन रीज़न. इसलिए सबसे पहले एक तो वेन डायग्राम जो आता है, वो वेन डायग्राम पूरी तरह से नया कंसेप्ट है. लेकिन एक बात आपको मैं डेफिनेटली इंसिस्ट करूँगा कि वेन डायग्राम जैसे ही आप उसके कंसेप्ट समझते हो, वो बिल्कुल आसान टॉपिक बन जाता है. बिकॉज फ्रॉम द गिवन डेटा, जैसा अभी आपने यहाँ भी देखा होगा, how we fixed up the sections, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. एक बार सेक्शन फिक्स हो गया तो फिर काम आसान हो गया, उसमें कोई ये नहीं है. इसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस फिर वही है कि वो इसकी टोटल क्या है, उसकी टोटल क्या है, वगैरह वगैरह, वो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस है. ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालना ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है. बाकी क्वेश्चंस क्या है वो आराम से, मीन्स वो ओनली चेस एंड कार्ड्स खेलने वाले कितने, एग्जैक्ट 2 खेलने वाले कितने, ये क्वेश्चंस ऐसे ही है, इसलिए वो मैंने क्वेश्चंस बनाए नहीं. ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट कंप्लीट द लेआउट. ये लॉजिक की खासियत है. लॉजिक में एक बार आपका लेआउट बन गया ना, तो फिर सारे क्वेश्चंस जस्ट आधे से 1 मिनट में आराम से निकलते हैं. तो इसलिए मैंने उसके क्वेश्चंस रखे नहीं है. अब यहाँ देखिए, हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस बन गए. टोटल वेरिएबल्स है 8. नाउ कैन यू टेल मी कि आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? ये इतनी इक्वेशंस आपके पास है, कहाँ से आप शुरू करोगे सो दैट इंडिविजुअल वैल्यूज हमें मिल सकती है? क्या लगता है? अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है ना BDGE और ये BDGE, दिस इज द कॉमन लिंक. ओके, आई विल से दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन लिंक. अब वो कॉमन इस प्रकार है, अब ये जो BDG है 3G मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ 3, और ये जो BDG है इट इज मल्टीपल ऑफ 7. अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कैलकुलेशंस भी आ गए, क्वांट का भी हिस्सा आ गया. रेशो प्रोपोर्शन मीन्स वो DI में तो होता ही है. लॉजिक में कैलकुलेशंस, सो इट इज कॉल्ड लॉजिकल DI या न्यूमेरिकल बेस्ड DI, कुछ भी कह सकते हैं.
सो इनको एक लेवल पे लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, तो लेट दिस बी इक्वल टू 21x एंड लेट दिस बी ऑल्सो इक्वल टू 21x, प्रोपोर्शनेटली ये हो जाएगा 12x, बिकॉज इट इज अ रेशो 7:4, और वो आपको एक कॉमन लेवल पे लाकर कंपेयर करना है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, उसके साथ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर x कनेक्ट होगा। सो अब आप देख सकते हो BDG वो 3 के भी मल्टीपल में है और 7 के भी मल्टीपल में है, बेसिकली बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो उनका LCM जो आता है LCM इज 21, 3 और 7 का, इसलिए वो हमने 21x उसी से कनेक्ट किया। सो नाउ हियर वी विल गेट, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 3g इज 21x, तो वी आर गेटिंग g एज 7x। अब यहाँ देखिए g प्लस e इज 12x, जिसमें से g है 7, सो e विल बी 5x, करेक्ट। ये 21 एंड 12 इसको हमने कंपेयर किया। अब यहां देखिए g प्लस e a विल बी 12x, करेक्ट है। अब यहां इस रेशियो में देखिए n जो है e के डबल है, सो n इज गोइंग टू बी 10x, e के डबल है, राइट। अब यहां ये n यहां अगर आपने कंपेयर किया, सो दिस इज गोइंग टू बी 10x, तो यहां क्या होगा 6x, सो d हो जाएगा 6x। okay, just see how we are getting the values। ओके 8 में से 5 वैल्यूज तो मिल गए, राइट। g प्लस ई DGE, यहाँ देखिए अब हमारे पास DGE की वैल्यूज क्या है, DG और E 11 और 7 18 में से यहाँ B आएगा 3x, B विल बी 3x, B से C 6 टाइम्स है तो C होगा 18x। कितनी वैल्यूज मिल गई, 7 वैल्यू मिल गई। अब कौन सी रह गई, A B C D E F रह गया। हाँ, अब यहाँ आते, यहाँ अब यहाँ E की वैल्यू है 5x, मीन्स इसकी वैल्यू है 20x DF की, राइट, जिसमें F की वैल्यू हमें चाहिए, राइट। D हमें मिला 6x, E मिला 5x, 6 5 11, मीन्स F विल बी 9x, तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई 9x। आ गई 8 के 8 वैल्यूज। अब ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। हम ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते बिकॉज सम x इज इन्वॉल्व। अब इसकी टोटल देखो क्या आती है, 15। So now we are getting 70x is 350, so x will be 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, किस प्रकार ये मिल गया, समझ में आ गया। ये बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ट्विस्टेड एक्सरसाइज है। इसकी डिफिकल्टी लेवल आप जज कर सकते हो। ये डेफिनेटली नॉर्मल से थोड़ा बढ़कर है, लेकिन है, मीन्स उसका कंसेप्ट सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सारा जो डेटा दिया है वो रेशो फॉर्मेट में है, इसलिए वो एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कनेक्ट करना है। ये सिर्फ
एक्सरसाइज या क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आता, इसे आपको किसी से एक्सप्लेनेशन लेना ही पड़ेगा. प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ डू रिमेंबर. इसलिए या ऐसे कुछ क्वेश्चंस, और ये जो है ये टिपिकल कैट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब जो भी वैल्यूज आ गई आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ. सो ए है 12x मीन्स ए होगा 60, बी होगा 15, सी होगा 90, डी होगा 30, ई होगा 35, एफ होगा 45, जी होगा 35 and n will be 50. You can check out. सारी कैलकुलेशंस आप एक बार चेक कर सकते हैं. 50, 40, 50, 80, 80, 80, 40, 170. ये टोटल हो गई 170 चेस की. ये 170 और ये 50, 190. नहीं, ये और जी कितना हुआ? ई 25, आई एम सॉरी, ये 25 है. हाँ, 5x है वो. सो इट इज़ 350. 170 प्लस ये हो गया 180. 170 और 180, इट इज़ 350. सारे कैलकुलेशंस टैली हो गए. करेक्ट. और इस पे जो क्वेश्चंस थे वो आराम से वैसे ही वो मैंने जानबूझकर ही सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन में बहुत ये है. नाउ हाउ मेनी पीपल प्ले एग्जैक्ट 2 गेम्स, दैट वाज द क्वेश्चन. सो इट इज़ DEF मीन्स वो कितना होगा? 100. देन हाउ मेनी पीपल प्ले चेस बट नॉट कैरम, चेस खेलते हैं लेकिन उसमें से कैरम को हटा दीजिए. सो इट इज़ 90. हाउ मेनी पीपल प्ले चेस और कैरम, चेस और कैरम, तो ये 65 को हटा दीजिए. 65 को हटा दीजिए तो बचा 285. करेक्ट. एंड हाउ मेनी पीपल डू नॉट प्ले कार्ड्स. अब ये इंटरेस्टिंग होता है, डू नॉट प्ले, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सर्कल है ना, उसके बाहर वाला सेक्टर आपको चाहिए. मीन्स इन सब की टोटल बना दो. ये 60, 50, 110, 200, 245. हमेशा ये जो आपको टोटल करने का जब समय आता है ना, आप हमेशा इस प्रकार कैलकुलेट करना कि उनकी राउंड फिगर बने, जो 100, 200, 300 के नज़दीक हो. ऐसे हमेशा राउंड फिगर बनाइए. तो यहाँ देख सकते हो आप 60 और 50 हो गए 110, प्लस 90 हो गए 200 और 245. कैलकुलेशंस भी फटाफट हो जाते हैं. सो यहाँ कैलकुलेशंस एकदम आराम से थे. ओनली द इम्पॉर्टेंट वाज कंसेप्ट्स. और कंसेप्ट्स के लिए मैं इसलिए ये बोल रहा था कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज था, ये था तो DI में, लेकिन उसमें कंसेप्ट था लॉजिक का, लॉजिक के वेन डायग्राम का. सो वेन डायग्राम ये जो टॉपिक है वो मैं हमेशा मेरे लेक्चर में कहता हूँ कि इट इज़ कॉमन फॉर DI एंड LR. अब वो कहीं भी आने दो, ये आपको सिर्फ सेकंड सेक्शन में मिलेगा, या ऐसा एक्सरसाइज आपको क्वांट में तो नहीं मिलेगा. सो वो डिस्टिंग्विश करने की कोशिश मत करना. लेकिन एक बात ध्यान में रखना, DI एंड LR, they go parallel, they go hand in hand. That is the most important one. Okay, एक बार आप ये देख सकते हो किस प्रकार हमने इसे अटेम्प्ट करने की, मीन्स कैलकुलेशंस की शुरुआत की. वो जो BDG जो है, दिस वाज द कॉमन लिंक. ये
यहाँ से हमने शुरुआत की। 3 के मल्टीपल में भी है और 7 के मल्टीपल में भी है BDG। इसकी टोटल भी आप यहाँ देख सकते हो, 50 और 55, 105 उसकी टोटल आती है। 105 3 और 7 दोनों के मल्टीपल में। ओके, सो एक बार देख लो, कोई डाउट्स है आप मुझे अगली बार पूछ सकते हैं।